The story based on which this film is made was written sometime in the 90s. Till 80s I was writing about other subjects. In the 90s I wrote plenty about, unwanted women, life-term prisoner women, men also, things like that. But this problem which has been dealt here is something, which has always been happening in history. It is happening still now, and I think it will continue to happen, though me like others want to change their life story either through writing or through activism, things like that. It is, I have found many women in distress company. I have found that women who have been mass raped, after a time, definitely she is not accepted. I am talking of the economically poorer section of the people. But they somehow accept it because they accept that they have to continue to live. Maybe they are thrown out by their husbands or by their parents' families, but they do something, be household work, sell something, survive. Survival is the main issue. In this story, the woman, this I have seen in middle class families, people who are, they are cultured, they are educated, they are well off, and this is very much middle class psychology, that they want to protect their home. Perhaps everyone does. So when a daughter-in-law of the house is gang raped by someone, it is very hard for them to accept her, the very concept of which, because to them it's a sin and the woman is responsible. So in this story they try to say she shouldn't have gone to her friend's place in the suburbs, she shouldn't have done this, she shouldn't have done that. This woman's husband is not like that, she wants to accept her. But the woman clearly understands he is finding it increasingly difficult. Husband would be happy if he could wipe off his wife's past and begin life anew. But this woman does not think that it is her fault that she was gang raped. She wants to live by her own name. She wants to cut out a new career, a new life for herself. The story's name is Chiracharito, that which happened before, same thing happening now, perhaps in the future it will go on happening, but if all of us try and women become conscious, men become conscious, their stories would start changing. That's all.
गुड मॉर्निंग मिस्टर दास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई वो ये मिसेस चौधरी ने सुबह 11 बजे से पहले सर्किट हाउस में बुलवाया है। मामला क्या है भला? मुझे नहीं मालूम सर। अरे वो कल्टीवेशन ऑफ पॉटेड ट्रीज प्लांटेशन के मामले में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं, या तोड़ा प्रोजेक्ट ने फिर से फॉरेस्ट इंक्रोच की है? आपको तो सही पता होगा। मेरे इलाके में तोड़ा प्रोजेक्ट के साथ कोई नया डिस्प्यूट नहीं है सर। ये हमने आपको क्यों बुलाया ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, मुझे लगा कि उनसे मिलने से पहले आपसे बातचीत करके जाऊं। बड़ी जबरदस्त महिला है। यस, शी इज वेरी टफ लेडी। कई जबरदस्त जज मजिस्ट्रेट देख चुका हूं मैं, पर मैडम इज इम्पॉसिबल। अरे भाई, सारे इलाके का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथों में है। ऊपर से मेरे बॉस चीफ इंजीनियर मिस्टर मुखर्जी के वो घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। शी इज वेरी एक्टिव और पॉपुलर। खैर, आपसे बात करके ये तसल्ली तो हुई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कैनल डिपार्टमेंट में कोई झगड़ा नहीं। नो इंक्रोचमेंट, नो लैंड डिस्प्यूट सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर। मैंने आपको बुलवा भेजा है ये कहना ठीक नहीं होगा। आपके पास बहुत काम है। आप कलकत्ते से दौरे पर आए हैं, इसलिए सिर्फ खबर भिजवाई थी। फिर आप ही जब तोड़ा प्रोजेक्ट के काम का देखभाल कर रहे हैं तो लोकल स्टाफ कुछ नहीं कर सकेगा। ये बताइए, ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा? बांध और नहर का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय लोगों को पीने के पानी का अभाव अखर रहा है। बांध और नहर तैयार होते ही 50 गांव को पानी मिलेगा। सिर्फ ये कहने से क्या फायदा? वैसे आप लोगों के कामकाज के मामले में काफी शिकायतें सुनने में आ रही हैं। असल में फंड एक बहुत बड़ी समस्या है। फंड देर से आता है, जब फंड आता है तो बारिश शुरू हो जाती है। वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए पैसों की कमी तो नहीं होती है, सिर्फ हम ही। समझिए, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्टों की जिम्मेदारी हमारी है। नित नए डेपुटेशन, उस पर पॉलिटिकल एलिमेंट का दबाव, खासतौर से आदिवासी लीडर लक्ष्मी मुर्मू की शिकायत भयंकर है। मिट्टी की कटाई फेंकाने का कोई काम ही नहीं हुआ है उनके इलाके में, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट दाखिल करके ठेकेदार पैसा ले गया है। मैंने खुद इंक्वायरी करके पाया है कि लक्ष्मी मुर्मू की शिकायत 100% सही है। उधर कोई काम ही नहीं हुआ है। आप जरूरत समझे तो ठेकेदार बदलिए, लोकल स्टाफ पर नजर रखें, पहले से बताकर टूर पर ना आए, सरप्राइज विजिट करें। आपके चीफ इंजीनियर मिस्टर मुखर्जी से मेरी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठेकेदार पर कड़ी नजर रखें एंड गिव मी द नेम्स अगेंस्ट whom चार्जेस कैन बी framed। वो मैंने तो पहले ही बताया मैडम कि फंड ही सबसे बड़ी समस्या है। वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस का मामला है। अच्छा, मैं देखती हूँ। जस्ट इन टाइम, मैं तैयार हूँ। मुझे एक इंक्वायरी पर जाना है जी। मणिरामपुर के एक विधवा की जमीन हड़पने के इरादे से उस विधवा का देवर उसे डाइन बनाने पर तुला है। अच्छा। वेस्टेड इंटरेस्ट। गांव के लोगों को भड़काकर जैसा होता चला आ रहा है, और क्या। कंप्यूटर, महाकाश पर गवेषणा, न्यूक्लियर वगैरह का हम कितना भी झंडा गाड़ते हुए 21st सेंचुरी की ओर क्यों न बढ़े। साधारण अनपढ़ असहाय लोगों की कमजोरी को मोहरा बनाकर ओझाओं पीरों और फकीरों की मदद से जालसाजी का ये व्यापार तो आज भी चल ही रहा है। अच्छा, सी यू। थैंक यू।
नमस्ते दत्त साहब। आप में जरा सा भी अकल नहीं है जनाब। अरे कितनी मर्तबे आपसे कहा है कि इस कदर बाइक चलाकर हॉर्न बजाते हुए सारे मोहल्ले के लोग को इत्तला देते हुए आप यहाँ पर मत आया कीजिए। अरे जनाब आपको आना है तो आप जरूर आइए, बाइक कहीं दूर खड़ी कीजिए, पैदल आइए। हाँ, शाम को अंधेरा होने के बाद आइए। ठीक है दत्ता साहब, मुझे याद रहेगा। ठीक है। लेकिन दत्ता साहब, आप जिन्हें इंसान कहते हैं, मैं तो उन्हें इंसान नहीं कहता हूं। इनसे डरने का क्या बात है? वक्त बदल रहा है लालू बाबू, वक्त बदल रहा है। हाँ, आजकल हर बात की रिपोर्ट होती है। लालू बाबू कितने मर्तबे दत्ता साहब के क्वार्टर में आते हैं, इसकी भी रिपोर्ट होती है। डीएम मिसेस चौधरी ने आपको बुलावा भेजा था, मुझे इस बात का खबर है। तो क्या बोली मजिस्ट्रेट साहिबा? अरे जनाब, आपके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें हैं उनके पास, बहुत सारे। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, रुपया बर्बाद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स काम किए बिना पेमेंट लेकर चले जा रहे हैं। दत्ता साहब, मैंने भी सुना कि डीएम बड़ी तेज महिला है। तो क्या बोली आपसे? डू यू नो, आप लक्ष्मी मुर्मू को जानते हैं? लक्ष्मी? वो बीए पास आदिवासी छोकरी। हाँ। ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर की मदद से इस इलाके के लीडर बन बैठी है। क्या कहती है लक्ष्मी ने? आपके खिलाफ डेपुटेशन लेकर गई थी डीएम के पास। उसका कहना है कि उसके इलाके में रत्ती भर काम नहीं हुआ है और तोड़ा नदी का पानी खेत के अंदर आ रहा है। अब मैं अकेला आपको कहां तक, कब तक बचाता फिरूं? दत्ता साहब, लालू बाबू भी कच्ची गोटी नहीं खेलता है। लक्ष्मी मुर्मू के खुद के इलाके के गांव वालों के अंगूठे के चिन्ह मैंने मास्टर रोल पर ले रखे हैं। अगर झमेला करेगी तो वो एक दस्तखत वाला कागज ही बोलेगा। 30 लोगों से 30 दिन काम करवाया है। अब अगर तोरा नदी सब कुछ मिटिया में कर जाए तो इसमें ठेकेदार का कसूर? वो आप जाने। मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए कह दिया। आइंदा जरा होशियारी से काम लीजिएगा। हाँ दत्ता साहब, मैं तो जानता हूं आप मेरे भले के लिए ही कहेंगे। लेकिन दत्ता साहब, आप तो आते हैं कलकत्ता से इंस्पेक्शन के लिए। क्या लोकल स्टाफ ने आपसे कुछ कहा? दास बाबू या सिकदार बाबू ने? लक्ष्मी मुर्मू की असली दवा बंसी हेम्ब्रम। जैसी ओखली वैसा ही मुसल। अब देखिएगा दत्ता साहब, एक दिन बंसी हेम्ब्रम लक्ष्मी मुर्मू को डाइन बनाकर ही छोड़ेगा। मेरा टेलीग्राम? कैसा टेलीग्राम है दत्ता साहब? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, पिताजी का टेलीग्राम। भैया को भेजे गए टेलीग्राम का मैसेज कुछ ठीक नहीं था। क्यों? बड़ी भाभी सीरियस है, ये तो कहा गया है ना? भाभी की हालत सीरियस है, ये जानकर भी अगर बड़े भैया वहां बैठे रहे तो हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअली भाई साहब के हाथ टेलीग्राम पहुंचेगा भी या नहीं, ये कौन जाने। कम शार्प, लिखना ना लिखना बराबर ही था। बड़े भैया के कलकत्ते के ऑफिस में तूने खबर की होती तो अच्छा होता। वो लोग जैसे भी बन पड़ता इन्फॉर्म कर ही देती। कम से कम पुलिस वायरलेस से खबर भेज सकते थे। तुम भी क्या कह रहे हो मजले भैया? अगर असली बात दफ्तर में बतानी पड़ती तो भले की जगह बुरा ही होता। अरे वहां जाकर बताते कि इस हादसे के बाद हम सबको फ्लैट बेच कर कलकत्ता छोड़कर जाना ना पड़ जाए। मैं तो भाई के भी ना जा सकूंगी। भतीजी शीला की बात पर किस मुंह से जाओ? जाकर कहूंगी क्या? कुछ भी कहो, ये घटना दब नहीं सकती। माई के बर्थडे पार्टी ये सब बातें छोड़ो। देख तो रही हो, क्राइसिस पीरियड है ये। क्राइसिस? ये तो वही बात हुई ना,
आ बैल मुझे मार, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपके बड़े भाई साहब का इंटेलिजेंस, अरे भाई हम भी तो घर से निकलते हैं, हमें भी तो कामकाज रहता है ना मछली दीदी? और नहीं तो क्या। असल में इस घर के 3 बहुएं और 1 ननद सुप्ती, इन चारों में सिर्फ दीदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बात सबको मालूम है। हाँ, वासु भैया तो कहते हैं बड़ी दीदी एक्सेप्शनल है, अनयूजुअली ग्रेट। अरे उसकी बात छोड़ो तो, ठीक है हम ठहरे ऑर्डिनरी किस्म के आदमी, हमें साड़ी गहने की लालच है तो छोड़ो भी, ये बड़ी दीदी की सिंप्लिसिटी भी एक स्टाइल है, एक तरह की इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी। माँ ने हम सबको 7-7 तोला सोना दिया है, तब तो बड़ी भाभी हाथ फैला कर लेने में पीछे नहीं रही। फिर सुना है बड़ी दीदी बच्चा अडॉप्ट करेगी। हाँ, अरे उस बच्चे की पेडिग्री को लेकर भैया से अनबन छिड़ी है। लेकिन हम लोग अपने विषय से हट रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? पिताजी को किसी तरह से समझा दिया है, अगर बड़ी भाभी जिंदा लौट आई तो भी यहाँ रहना संभव नहीं, अलग एस्टेब्लिशमेंट होने पर भी नहीं। आसपास के लोगों का क्यूरियोसिटी भी कुछ कम नहीं है। घर की बड़ी बहू कहाँ गई, पुलिस को इत्तला हुई या नहीं, अरे कहाँ तक झूठ बोला जा सकता है। मैंने तो हर कमरे की बत्ती बुझा कर रखने के लिए कह दिया है। और काम करने वाली, उसका मुंह बंद कर सकोगी? तुम्हें क्या लगता है उसने अंदाजा नहीं लगाई? मुझे तो भैया पर तरस आ रहा है, उनका टेम्परामेंट भी हम सबकी तरह है, बट ही इज जस्ट अ विक्टिम। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर बड़ी भाभी बच गई तो यहां आकर रहेगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कहां जाएगी? भैया को आ जाने दो, फिर इससे बातें होंगी। सुनो ना, आज टाइच नहीं है, मैं टीवी पर डिशुम खूब बज जाएगा, खूब बज जाएगा। देखा जाएगा, पहले अपना ड्राइंग खत्म करो, चलो। हेलो, नर्सिंग होम? हाँ हाँ, सिस्टर मित्रा बोल रही हैं? हाँ 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 हाँ, वो ठीक है ना? शी इज बेटर नाउ। हाँ, थैंक यू। हाँ, बीच बीच में वेकेंट लुक। ओहो, डॉक्टर घोष देख गए हैं? हाँ हाँ ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई। हाँ हाँ हाँ, आप कहीं जरा नजर रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। कमरे में ही तो थी, फोन नहीं उठा सकती थी क्या? मुझे मालूम है कि नर्सिंग होम से फोन है, मैं फोन उठाकर कहती क्या? अजीब बात है। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, फिर भी तुम्हारा इतना इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस घर का हर आदमी एक से बढ़कर एक है। मजले भैया में फिर भी कुछ इंसानियत है, लेकिन वही मजली भाभी के डर से वो घबराए रहते हैं। और टुगलू महाराज वो तो अपने धंधे में मस्त। छोटी बहू रीतू वो तो मेरे जैसे कंप्यूटर सेल्स पर्सनल को कुछ समझती नहीं। अभी बाकी रही बड़ी भाभी की बात। हाँ, बड़ी भाभी में भी एक कमी है, वो अपने पति देव को मन मुताबिक ढाल नहीं सकी। ढाल पाना मुश्किल ही था क्योंकि जीन, क्रोमोसोम्स, समझती हो ना? तुमने तो बायोलॉजी पढ़ी है। मुझे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश मत करो, समझे? नर्सिंग होम से फोन क्यों आया था पूछोगी नहीं? मुझे नहीं सुनना। अजी सुनते हो, बड़े भैया आ गए हैं। हाँ, बड़े भाई साहब आ गए हैं? चलो अच्छा हुआ। पर वो है कहाँ? पिताजी के कमरे में। ओह, चलो किताब पकड़ो।
पिताजी, माँ, तू आ गया? क्या बात है पिताजी, घर की सारी बत्तियां बुझा के रख दिया है और अगल बगल के सारे फ्लैट्स में अंधेरा है। भूत बंगला है क्या? खैर, रिंकी कैसी है? क्या हो गया बेटा? माँ, क्या हुआ क्या है रिंकी को? बोले का बच्चा ही क्या है बीरू? पिताजी, खैर घर के और सब कहाँ है? बाबलू टुकलू कोई नजर नहीं आ रहा है। सुप्ती कहाँ गई? वैसा हाँ, चलो अच्छा हुआ आप आ गए। टेलीग्राम मिल गया था ना? अच्छा, वैसा टेलीग्राम कोई भेजता है क्या? वैसा टेलीग्राम पढ़ने के बाद दिमाग ठंडा रख सकता है कोई? खैर, क्या हो गया गई रिंकी को? बासु तुम मेरे को सारी बात बताओ। हाँ हाँ पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सारी बात बता दूंगा। अभी तो वो आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? हाँ चलिए, आप मेरे कमरे में चलिए, वहीं पर सब बातें बता दूंगा। चलो मैं बैग ले चारों ओर अंधेरा करके रखा है, आने के बाद सिर्फ अंधेरा देखना होगा। Near the village where he lived, there was a forest. In it were many. अरे वो मछली दीदी, बड़े भैया को टेलीग्राम मिल गया है, वो आ गए हैं। अच्छा, क्या पिताजी के कमरे में है? कलयुग के वसुदेव वासु भैया के कमरे में दरवाजा बंद करके बातें हो रही है। मधुबन की राधिका की बात सुनना ले, कोई सुनना ले। तुम बड़ा मैं कुछ समझा नहीं। कौन अनूप दादा? तुम्हारे कोई रिश्तेदार? नहीं, अनूप गुप्ता, रेवती गुप्ता का बड़ा लड़का, हरिदेवपुर में जिनके घर के तालाब में आपने मछली पकड़ी थी। हम लोग 2 दिन वहां ठहरे थे, बहुत खुशमिजाज इंसान। हाँ, अब याद आया। अनु दादा, हाँ वो तो पुलिस में नौकरी करते थे। तो सोमवार को मैं दफ्तर में काम कर रहा था, यही करीब 11 बज रहा था उस समय। अचानक अनूप दा का फोन आया। चंपाटी थाने के ओसी है वो, वहीं से फोन किया। एक SOS। उन्होंने कहा कि रिंकी दत्ता यानी कि बीरू दत्ता की पत्नी मृत प्राय हालत में यहाँ के अस्पताल में भर्ती की गई है, कम इमीडिएट। चंपाटी में? चंपाटी वो तो कैनिंग लाइन में है। रिंकी वहां? मैं भी तो वैसे सोचा, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि बड़ी भाभी तो सॉल्ट लेक के स्कूल में काम करती है। एनीवे, मैं घर पे फोन किया, आपकी माँ जी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि कल बड़ी भाभी चंपाटी गई एक दोस्त से मिलने, शाम को लौटने वाली थी पर लौटी नहीं, तो बहुत चिंतित थी वो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना तो समझ गया कि अनूप दा ने बड़ी भाभी को पहचानने में गलती नहीं की। तो भागा चंपाटी। वहां थाने पे अनूप दा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनसे पता चला कि सुबह सुबह एक निर्जन इलाके में एक बेहोश औरत मिली। बहुत ही नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर भद्र, वेरी नाइस मैन ही इज। मैंने उनसे कहा कि देखिए, देख के तो लग रहा है कि रेस्पेक्टेबल लेडी है, मैं लोकल इंक्वायरी कर रहा हूं, अब आपसे जो बन पड़े आप कीजिए। डॉक्टर भद्र बोले कि देखिए, एग्जामिन करके मैंने जो पाया है उससे ऐसा लग रहा है कि काफी तादाद में यंग रफी एंड एंटी सोशल हुडलम से भिड़ना पड़ा है भद्र महिला को, और इंजरी देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रजिस्ट करने की भरसक कोशिश की, लेकिन गुंडे संख्या में अधिक थे, इसलिए अपने आप को घातक हमले से बचा नहीं सकी वो। मेंटल और फिजिकल दोनों ही शॉक है। मुझसे जो भी बन पड़ रहा है मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस हॉस्पिटल के स्कोप काफी लिमिटेड हैं। ऐसे पेशेंट को कलकत्ता शिफ्ट करना ही बेहतर होगा।
आप अगर ना होते तो बड़ी भाभी शायद बच नहीं पाती। मुझे तो एक दूसरी टेंशन है, अगर वो बच भी गई तो दत्त परिवार को तो मैं जानता हूं, दे आर वेरी 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 कंजर्वेटिव। तो मुझसे अच्छा और कौन जानता है? बड़ी बहू के ऊपर इस ऑनस्लॉट की खबर अगर फैल गई तो एक और समस्या होगी है, वीरू और उसकी पत्नी का जीना दूभर हो जाएगा। और ऊपर से ये प्रेस पॉलिटिकल एलिमेंट्स दीवारों पर पोस्टर चिपकाना शुरू कर देंगे और हमारे ये ओवर एंथुजियास्टिक प्रेस रिपोर्टरों की क्यूरियोसिटी। आपको बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है, सचमुच। हाँ, मेरे ससुराल के बारे में आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। कंजर्वेटिव तो है ही। इस घर का हर आदमी हजारों तरह के सुपरस्टिशंस का शिकार है। सोमवार को ये नहीं खाना चाहिए, मंगल को वो नहीं करना चाहिए, और फिर शुक्रवार और शनिवार तो है ही। और ऊपर से बड़ी बहू निसंतान है, शहर के नामी ग्रामी गायनेकोलॉजिस्ट सभी लोग देखें। और फिर टेस्ट वगैरह करने के बाद सभी ने बताया कि दोनों के शरीर में कोई दोष नहीं। लेकिन बैरन, स्टेराइल, इन सब अपवादों का अपमान तो बड़ी बहू को ही झेलना पड़ता है ना। यस, अनफॉर्चुनेटली सो। मैंने कुछ सुना है। तो फिर बिलूगा है तो वो इंजीनियर, आप तो जानती हैं। बिलूगा भी क्या क्या करते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। नयाटी के पास एक पीर बाबा है, वहां जाते हैं वो ताबीज वाबीज लाने के लिए। अच्छा। और फिर दक्षिणेश्वर, तारकेश्वर, ये सब तो है ही। आई जस्ट कांट स्टैंड ऑल दिस। और हाँ, मैंने कुछ और सोचकर थाने में या अस्पताल में नाम दर्ज नहीं करवाया है। आपको बुला भेजने के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मुझे तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब थाने में जो मैंने लिखवाया है वही अस्पताल में भी लिखवाया है, अनआइडेंटिफाइड लेडी। अब नाम आपको देना है। हाँ, ठीक ठीक। तो अभी हम लोग एक बार बड़ी भाभी को देख लेते हैं। मुझे भी चलना होगा क्या? नहीं तो अकेले चलना पड़ेगा ना। नहीं, मैं कांस्टेबल भेज देता हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैं बेहद नर्वस फील कर रहा हूँ, अगर आप चलते तो। अच्छा ठीक, चलिए आइए। इस बीच उस रात एक और घटना घटी। रिंकी जहां मिली थी उससे लगभग आधा किलोमीटर दूर पुलिस को एक रिक्शे वाले की बॉडी मिली। तेज धार वाले चाकू से उसके गले की नस काट डाली गई थी। क्या कह रहे हैं? ये तो एक gruesome घटना है। दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन माय एरिया। एक बहुत ही घिनौनी पैशाचिक घटना। मैंने कुछ एंटी सोशल लोगों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक विटनेस भी मिला है मुझे, थाने पर बुलवा भेजा है। उसने रिंकी को रिक्शे पर देखा था। वो क्या बोल रहे हैं? आतापाड़ा में लता वितान नाम का एक मकान है, वहीं से उसने रिंकी को रिक्शे पर चढ़ते हुए देखा था। आतापाड़ा? अच्छा 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 अच्छा। मैंने सुना है आतापाड़ा में मधुपर्णा नाम की बड़ी भाभी की एक कलीग रहती है। लौटते वक्त एक बार वहां खोज खबर ले सकते हो। आप भी चलिए ना। अभी मैं ऑफिशियल करना नहीं चाहता। क्या नाम कहा आपने उस मकान का? लता वितान।
एक्सक्यूज मी, ये पेशेंट कहाँ है? हेलो, ये पेशेंट का पल्स रेट ठीक नहीं है, अभी तक होश में ही नहीं आई। बीच बीच में कभी एक वैकेंट लुक, इसका कोई मतलब नहीं होता। पेशेंट का हालत बहुत गंभीर है। सर, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए आपकी जरूरत है। चलिए। घर के लोग तो आ गए हैं डॉक्टर, क्या आप पेशेंट को यहां रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? इस अस्पताल में इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं, आप बताइए। शहर का कोई अस्पताल में अगर ट्रांसफर कर देते तो बहुत बेहतर होता, पर उनका पहले पेशेंट का रिलीज बॉन्ड तो साइन करना है। ये तो है ही है, और कलकत्ता वैसे काफी दूर भी है। जी एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, उनसे कहिएगा मैं बाहर जीप में उनका वेट कर रहा हूँ। राइट। हाँ, तो क्या तय किया आपने? यहां रही तो बड़ी भाभी का जिंदा रहना मुश्किल है। अभी घर के साथ संपर्क करना भी तो मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, नागतल्ला में एक नर्सिंग होम है, मैं वहीं पर शिफ्ट करा देता हूं। असल में मेरे एक बहनोई उस नर्सिंग होम के डायरेक्टरों में से एक है। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल तो बॉन्ड के बिना रिलीज नहीं करेगा। हाँ, तो बॉन्ड दूंगा ना। और एम्बुलेंस का क्या होगा? एम्बुलेंस की बात भी हो चुकी है, घंटे 2 घंटे में एक आ जाएगी, और एक जूनियर डॉक्टर भी साथ चलने के लिए राजी हो गए। वाह, देख रहा हूँ आपने काम तो काफी आगे बढ़ा लिया है। अरे साहब, आपके बिना ये सब थोड़ी हो पाता, कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते। छोड़िए ये सब, काम की बात यह है कि आपको तो साइन करना पड़ा। पेशेंट का नाम क्या दिया है? कौरवी सेन। कौरवी सेन। छपरा हाजी से कलकत्ते के नागतल्ला नर्सिंग होम लाने तक मैं बहुत टेंशन में था। अगर अनुपदा ना होते तो पता नहीं मैं क्या करता। मुझे तो लग रहा है कि अगर तुम न होते तो शायद रिंकी मर चुकी होती। Take it easy. Let's hope for the best. चलिए, अब रात हो चुकी, आराम कीजिए, कल सुबह हम लोग नर्सिंग होम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बैठो बिल्लू। मैं हैरान हूं पिताजी, बाबलू टुगलू कोई भी एक बार के लिए रिंकी को देखने के लिए नर्सिंग होम नहीं जा सका। हाँ, बापू सब कुछ कर रहा है। सो तो मैं भी जानता हूं, वरना रिंकी बचती नहीं। ये भी कोई बचना हुआ। इस तरह की स्कैंडल में मुझे मत लपेटो। बिना वजह फंस गया तो कितनी तरह की बातें होंगी, किससे रटेंगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? और फिर तुम्हारे ऑफिस में कलीग लोग क्या आपस में बातें नहीं कर रहे होंगे? कितना भी नाम क्यों ना बदलो, हम जाकर भी क्या कर लेंगे? इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा ये कौन जानता था।
मेरे तो भाग ही फूटे हैं। देखो बीरू, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुख का ही है। वह ना जाकर बबलू टुबलू ने ठीक ही किया है। औरतों के जाने का तो सवाल ही नहीं उठते है। नर्सिंग होम जाने से सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं समझा, लेकिन मैं जाऊंगा। हाँ, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन बासु की बातों में आकर दोषी पक्ष को पकड़ाकर सजा दिलवाने की कोशिश मत करता। पुलिस केस होगा, कोर्ट में वकील खड़े होकर नोच नोच कर चिथड़े उड़ाएंगे। यही आप चाहते हैं ना? वाह। सुनो बीरू, मेरा अब देश और समाज की बात सोचने का वक्त नहीं है। मेरी भी अपनी इज्जत है। सजा दिलवाने की कोशिश करने का मतलब है पब्लिसिटी। कुछ नहीं तो ये पब्लिसिटी हमारे लिए बर्बादी का कारण हो जाएगा और तब कलकत्ता छोड़कर बांसबेड़े में जाकर रहना पड़ेगा। देखो भैया, बुरा मत मानना। बड़ी भाभी को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये मुसीबत एक तरह से उनकी खुद की बुलाई हुई है। वसुधा भरसक किए जा रहे हैं। अनूप दादा ना होते तो हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाती। नाम बदलकर करोबी से निकलने से छुटकारा मिल जाएगा ऐसा तो नहीं लगता। नागतला में मेरे जान पहचान वाले काफी लोग रहते हैं। अरे उसी नर्सिंग होम का डाइटिशियन हीरक बाबू का बेटा है, जानते हो क्या? तुम रतन की बात कर रहे हो? और किसकी बात कर रहा हूं? हमारे इस इलाके में कितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जानते हो? अरुण दास गर्दन पर पाउडर पोतकर, हाथ में बैग लटकाकर सुबह 10 बजे निकल पड़ता है। उनका इलाका है जादवपुर गुड़िया से नरेंद्रपुर, और उधर विश्वास तो है ही। साउथ साइड के हर नर्सिंग होम उनके उंगलियों पर है। कौन डॉक्टर कहां बैठता है, कहां किससे किस वक्त मिला जा सकता है, यही काम है उनका। बेकार बातें बंद कर टुबलू। करोबी सेन के नाम से रिमकी दत्त पर पर्दा डाला नहीं जा सकेगा। और इस तरह के रंगीन किस्से ठीक है, कहा है इस तरह की किस्से कहानियां हवा से भी तेज भागती है। और वो नागतला की नर्सिंग होम में, अरे वो जो फिल्म एक्ट्रेस है ना सतरूपा समादर, वो आत्महत्या की कोशिश के बाद 12 दिन तक वहां रह गई थी। भले ही अखबारों में न छपी हो, मगर सबको पता है। भाई साहब, मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चल भाई साहब, आप दोपहर तक लौटेंगे ना? नहीं, मेरा कुछ ठीक नहीं। सोच रहा हूँ नर्सिंग होम से एक बार दफ्तर भी जाना पड़ेगा। नमस्ते। आप है मिस्टर दत्ता? इससे पहले आना संभव नहीं हुआ। जी, मैं टूर पर था, खबर मिलने के बाद आप पहुंचे हैं। वो कैसी है? इंजरी तो है ही, गहरा सदमा पहुंचा है। 3-4 लोगों का इस तरह से मिलकर के सुनने के साथ इट्स रियली वेरी सैड। फिर भी आपकी पत्नी जब तक होश में रही जूझती रही। कम से कम इंजरी देख करके तो ऐसा ही लगता है। और सेडिशन से बाहर आते ही उन्होंने आप ही को पूछा है। जी, कंडीशन कितना सीरियस है? कंडीशन खतरा टल गया है, इतना कह सकते हैं। और अभी कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। देखिए, इस तरह के केसेस में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको अपनी पत्नी की हालत को समझना होगा। इंजरी सिर्फ शरीर का तो नहीं है ना। इस तरह के केस में अक्सर पैरानोया डेवलप करके देखा जाता है। पेशेंट कल्पना कर लेता है कि शी इज बीइंग परसिक्यूटेड बाय अदर्स एंड एट टाइम्स इट मे बी सो सीरियस। एक तरह का यह साइकोसिस डेवलप करता है। आपको अभी बहुत कुछ करना है। मतलब कि फिलहाल आपको टूर वगैरह सब बंद और भाभी जी के साथ मैक्सिमम समय गुजारना पड़ेगा। कंडीशन में है, but her condition is better, much better. देखो मैं आ गया हूं, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। देख रहे हैं ना, अब तक शॉक से बाहर नहीं है। खैर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो जरूरत होगा हम करेंगे।
कभी से किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम दे देंगे, आपको बिल मिल जाएगी। आइए बाहर आइए। भाई साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाभी अभी आउट ऑफ डेंजर। सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर आइए। किस तरफ चलेंगे अभी? ऑफिस की ओर जाना है तो चलिए, मैं भी तो चौरंगी जा रही हूँ। हाँ, और फिर बैंक भी जाना है, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं तुम्हारे, करीब 10,000 हो चुका। खैर आप कैश से मत दीजिए, चेक दीजिएगा, ठीक है? आज शाम को पहुंचा देते हैं। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, आपका भी तो खर्चा होने लगा। आप ऐसा कीजिएगा, वो आपकी छोटी बहन सुप्ति के नाम से आप दीजिएगा। सुप्ति के नाम से चेक, ठीक है? चलो। उतरिएगा मत दीदी, ये लोग गुंडे हैं। अबे यार रुक! रिक्शा मत रोकिए, ट्रेन पकड़नी है। क्या कर रहे हैं? अबे छोड़ दीजिए, ट्रेन पकड़नी है। किसका रिक्शा है? मैं रशीद हूँ, गोपाल मित्र बाबू का रिक्शा चलाता हूँ। क्या रहा है? शुरू कर। क्या कर छोड़ दीजिए दीदी को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दीदी को, अगर लंबा होता है थोड़ा पानी से किया अंजलि अगर यहाँ रहेगी तो ना जाने क्या बनेगी। मैं तो उसे अपने भैया भाभी के पास स्टेट्स में भेज दूंगी। जो भी कहो मछली दीदी, सुकुमार राय का आबो ताबो खरीद ले जाते हैं। अब तुम लोग अपना फालतू का बकवास बंद करो। मुझे तो भैया का इरादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बड़ी भाभी को यहाँ ले आएंगे? भले ही हम सबका अलग अलग फ्लैट क्यों ना हो, फिर भी मैं तो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं ये कह देती हूँ। इसके लिए मेरे पति से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। झगड़ने से क्या फायदा? मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आज नहीं तो कल बड़ी भाभी के ये केस से आउट हो जाएंगे। ये बातें दबी नहीं रह सकती। ये पूरी डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। आफ्टर ऑल वे बड़े हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक के लिए पूरा परिवार डूब तो नहीं सकता ना। भगवान जाने आगे क्या होगा। मायके से फोन आता है, डर के मारे मेरी तो जान निकल जाती है। माँ ने कह दिया है बड़ी भाभी अगर इस घर में आई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। बड़े भैया तो कुछ कहते नहीं, और फिर इसके अलावा मेरे घर में गृह देवता है ना। और पिताजी वो क्या बैठे बैठे ये सब अधर्म अनाचार देखेंगे। कम से कम जीते जी मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये सब टीवी हुई बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह सुबह बिना खाए पे निकले थे,
और शाम ढले लौट रहे हो। कहाँ थे सारा दिन? नर्सिंग होम में? नहीं, नर्सिंग होम कहाँ जा पाया, दफ्तर में ही तो पहुंचा 2 बजे के बाद। सवेरे से दोपहर तक तुम थे कहाँ? बड़े भाई साहब को लेकर चंपाहाटी गए थे। चंपाहाटी? हाँ, मधुपर्णा से मिलने। उस दिन भेंट नहीं हुई थी ना। घर का खाओ और जंगल की भैंस खदेड़ते फिरो। इम्पॉसिबल। मुझे शुरू से ही खटक रहा था, जानती हो कि हफ्ते में तो सिर्फ एक ही दिन छुट्टी होती है, काम काज भी रहता है, तो बड़ी भाभी सुबह सुबह चंपाहाटी के लिए क्यों निकल पड़ेगी? मतलब मधुपर्णा के वहां अड्डा मारने नहीं गई थी वो। फिर कौन सा तीर मारने गई थी मारिम की दत्ता, आज के नर्सिंग होम की कौरवी से? देखो सुप्ती, एक असहाय महिला का मजाक मत उड़ा। अरे रिमकी दत्ता नर्सिंग होम में कौरवीसन के नाम से भर्ती नहीं हुई? हाँ, पर वो नाम तो मैंने लिखाया था, मैंने। वो भी इस परिवार का महान ट्रेडिशन, प्रेस्टीज, इसे बरकरार रखने के लिए। अच्छा। हाँ, ससुर जी ने फ्लैट तो दिया है, हालांकि तुम्हारे नाम से, पर मैं कितने दिन यहां टिक पाऊंगा पता नहीं। ठीक है, तुम बताओ मधुपर्णा क्या बोली? नहीं, तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं। खुद बड़े भैया अपनी पत्नी की समर्थन नहीं किया, नाराजगी है उन पर, और नाराजगी की बात है ही ये। तुम बताओ मधुपर्णा क्या बोली? बड़ी भाभी स्कूल के मामले में कुछ बात करने के लिए वहां गई थी, बहुत जरूरी बात। स्कूल की? जी। स्कूल तो है सॉल्ट लेक में, फिर चंपाहाटी क्या करने गई थी? तो सुनो, उस स्कूल में सविता राय नाम की एक टीचर, एक मैथ्स की टीचर, उन्हीं को लेकर सारी घटना घटती है। अच्छा। सिर्फ एक लीव एप्लीकेशन को लेकर। हाँ कहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छी बात। अच्छा, मैं देख रहा हूं। हाँ, बताऊंगा आपको। ओके। हाँ मिसेस रॉय, आपकी लीव एप्लीकेशन मैंने देखी, लेकिन मेरे लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि सेशन के बीच में छुट्टी देना मेरे लिए बहुत ही असंभव है। देखिए, कुंतला दी ने कहा है मेरे पीरियड्स दूसरे टीचरों में बांट देगी। रिंकी दी मधुपर्णा की एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेगी। अच्छा, मतलब यह है कि आप लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना रही हैं? नहीं, देखिए बच्चों की बात सोच के स्टाफ ने। देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चलाना पड़ता है। धार से छुट्टी मांगने से स्कूल चलेगा कैसे? इस परिस्थिति के लिए मैं भी तैयार नहीं थी। हाँ, सब कुछ भगवान के हाथों में। लेकिन साल बीतते ना बीतते लड़कियां शादी के बाद यदि मैटरनिटी लीव मांगे तो स्कूल बंद कर देना पड़ेगा। और फिर यह सोचिए, वर्किंग गर्ल्स का रह रहकर मैटरनिटी लीव लेना, ये कैसी बात? क्या हुआ? आप मुझे अपमान कर रहे हैं। आप कौन सी जीत बोल रहे हैं? You are crossing your limit. सविता राय की सर्विस को 2 साल ही तो है ना? हाँ, देखा क्या ऑडेसिटी है इस गर्ल की। ये कहकर चली गई कि आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट। आखिर मैंने क्या कहा है उसे बताइए। नथिंग एट ऑल। हटाइए ये झंझट। हाँ, हटाना तो पड़ेगा ही, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किस तरह हटाया जाता है। इतनी बड़ी बात नहीं, वर्किंग गर्ल्स मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती। अभी मजा चकाती है। 9 से 4 हमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। 6-6, 7-7 क्लासेस लेने पड़ते हैं, ऊपर से टिफिन तक खाने का वक्त नहीं मिलता है, और ढेर सारी कॉपियां चेक करने के लिए घर ले जानी पड़ती है। इधर केजीवन में एक सेक्शन और खुल रहा है, लेकिन स्टाफ वो ही रहेगा। इसका एक उपाय निकालना होगा। शादी के बाद खान पूरा होना होता, लड़कियां मैटरनिटी लीव चाहती हैं। इतनी बड़ी बात नहीं, इसका सिला एक बड़वच है। ये सिर्फ सविता का नहीं, हम सबका अपमान है। एग्जैक्टली सो। हाँ, रेजिस्टेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप कुछ कह रहे हैं क्या? रिंकी दीदी को साथ बुला लो। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। माजरा क्या है?
मुझे अकेले बुलाकर क्या कहना चाहते हैं? शायद तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। भाभी लेवाती हूँ। सुनो, मेरे ना आने तक कोई भी अपनी क्लास में नहीं जाएगा। अरे सुनने में आए हैं कि वो हम में से कुछ को निकालना चाहते हैं। आजकल देख नहीं रहे हो, मामूली सी छुट्टी को लेकर कितना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इतने देर काम करते हुए अगर कभी एक आध मिनट स्कूल आने में देर हो गई तो बस अटेंडेंस रजिस्टर में लाल लाल गोला लग जाता है। सही, आपने ठीक ही कहा। बहुत ज्यादा शुरू करती है। बस नहीं, रेल नहीं, रिक्शा भी नहीं मिलेगा, लेकिन मिसेस सिन्हा की एक ही रहा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। नहीं मिसेस दत्त, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। मैंने मिसेस रॉय को ऐसा कुछ नहीं कहा। बच्चों का क्लास सफर करेगा, बस इतनी बात मैंने कहा। वो अगर चाहे तो अपनी छुट्टी ले सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टाफ रूम में जाकर रोज होकर एजिटेशन फैलाना, एक्साइटमेंट फैलाना, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ तक आकर मुझे शिकायत कर रही थी। नहीं। शादी के बाद साल पूरा होते ना होते मैटरनिटी लीव मांगना, वर्किंग गर्ल्स का यूं बार बार मैटरनिटी लीव लेना, ये सब बातें आपने नहीं कही। आप एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल लेडी हैं। मैं कई सालों से आपको देख रहा हूं, और फिर आपके पतिदेव एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्हें भी झंझटों में पड़ते हुए आपने देखा है, लेकिन इस तरह की हरकत, इनसबऑर्डिनेशन मिसेस रॉय कर सकती है, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आपने मुझे क्यों बुलाया? आपसे कोई अधिक सेंसिबल है नहीं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। देखिए मिसेस दत्त, यह स्कूल आपका, हमारा, सबका है। बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। किसी की व्यक्तिगत स्वार्थ को देखने से काम चलेगा कैसे? और फिर देखिए, मदरहुड में पहुंचकर तबीयत को ठीक करके काम ज्वाइन करते करते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। मिसेस रॉय की नौकरी तो सिर्फ 2 साल की है। ये मेरे लिए संभव नहीं है। आई एम सॉरी। इफ मिसेस रॉय सो डिजायर्स, शी कैन सबमिट हर रेजिग्नेशन। उस घटना के बाद स्कूल और नहीं चला। दूसरे ही दिन बड़ी भाभी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करने के लिए चंपाहाटी गई, जैसे कि सोमवार से घिराव और फिर रेक्टर को माफी मांगने पर विवश करना वगैरह वगैरह। ओ, अब समझी। एक्शन प्लान तय करते करते बड़ी भाभी खुद डायरेक्ट एक्शन की शिकार हो गई। आफ्टर ऑल, बड़ी भाभी इज मच टॉलर देन हर स्टेचर। तो फिर शुभ काम में देर क्यों? गर्दन ऊंची करके मुंह फाड़ के मैडम की तरफ देखते रहो। देखिए, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि इस तरह के केस में फिजिकल इलनेस से कहीं ज्यादा प्रीडोमिनेंट मेंटल स्ट्रेस होता है, मगर आपकी पत्नी में इस तरह का कोई साइकोसिस डेवलप नहीं किया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे अभी तो उठकर भी बैठ रही हैं, सबों से नॉर्मली बातचीत कर रही हैं, अखबार मांगकर पढ़ रही हैं, मगर इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। उन्हें प्यार की सख्त जरूरत है, प्यार से उन्हें अपनाना पड़ेगा। बाय द वे, आपके घर में कौन कौन है? वैसे कहने को तो सब हैं, लेकिन अब आपने मेरी पत्नी को जीवन दान दिए हैं, आपसे क्या छुपाना। मेरे घर में एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है, हर एक अनफ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। एक काम कीजिए, कहीं बाहर घूम आइए। ट्रैंक्विलिटी मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बोल रही हूँ। 17 नंबर वायलिन। अच्छा, पेथिड्रिन दीजिए। जाइए, आप मिलकर आइए। थैंक यू। हाँ, टेम्परेचर ले लेना, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ खाया? अब तुम ठीक हो गई हो? काम वाली बड़ी आशा आई थी। हाँ, आई थी, सुबह काम करके चली गई। उसे कहने से वो खाना भी बना देगी। नहीं, उसके पास उतना वक्त नहीं है। वैसे वासु ने कहा था रात का खाना उसके घर खाने के लिए, मगर जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए पका लूंगा। वासु बाबू फोन से जा गए हैं। हाँ, अब इस मुसीबत में वासु ही तो मेरा साथ दे रहा है। बहुत मुसीबत है ना? नहीं, मुसीबत यानी कि आफ्टर ऑल
अनवांटेड सिचुएशन तो है, जी करता है कि लंबी छुट्टी ले लूं, कहीं कहीं चला जाऊं तुम्हें लेकर। कहाँ जाओगे? कहीं भी, कहीं भाग चलते हैं दोनों। भागेंगे क्यों? तरह तरह की बातें करते हैं लोग, उनके सवालात का तो कोई अंत नहीं है। और तुम्हें कुछ नहीं जानना? नहीं, अब जानने का भी क्या रह गया है। पर तुम्हें बहुत देर कर दी लौटने में। जल्दी घर लौट आती तो जानती हूं ना जमाना कैसा है। और फिर चंपाहटी जाना भी टाल सकती थी तुम। सब कुछ टाला नहीं जा सकता। देख रही हो ना, घर की दो बहनें, सुखती मेरी बहन, एक बार भी तुम्हें देखने तक नहीं आई। और मेरे दो भाई तो वो अपने जैसे हैं। स्वार्थी है, सारी दुनिया स्वार्थी है। मैं ऐसा नहीं समझती। मैं समझती हूँ दुनिया बहुत सुंदर है। हर कोई अपनी इच्छा से, अपनी रुचि और जीवन बोध से अपने आप को सजाता है। मैं उनको दोष नहीं देती, मगर मेरा परिचय यहाँ करोगी सन क्यों है? वो क्या है, वो वासु ने नाम बदल कर रखा। इससे क्या फायदा? लोग जान जाते तो खामों का शर्मिंदा होना पड़ता। नाम बदलने से कम तुम्हारी तरफ तो कोई उंगली उठा नहीं पाएगा। लेकिन अपने पास मैं तो खुद जानती हूं ना कि मैं दिन की दत्त हूं। इन बदमाश लोगों को कुछ पता चला? पता नहीं, और पता चलने से भी क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? मैं देखना चाहती हूँ। बहुत देर से बैठी हूँ। माँ, तुमने सुना? बड़े भैया नर्सिंग होम से बड़ी भाभी को लेकर यहीं आ रहे हैं और मंजली भाभी तो अंजलि को लेकर मायके जा रही है। घर में गृह देवता है, आपकी क्या राय है माँ? उसकी 3 पुश्त में कोई नहीं है, ना जाने आप लोगों ने उनमें क्या देखा, बस बहू बना ली। अरे भाग के हाथ से कोई बच सका है क्या? वीरू क्या पहले ऐसा था? कभी नहीं ऐसा था। यही तुम्हारे ससुर अधीर सरकार की बेटी सुनकर तुरंत राजी हो गए। बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे, कितनी बातें करती है। उस दिन मैंने बोला मेरे मामा भी फ्रीडम फाइटर थे, ताम्रपत्र पा चुके हैं, पेंशन पाते हैं, बाघाचदिन में 3 तल्ला मकान है, मेडिकल फ्री, बड़े मामी का ऑपरेशन भी हुई। अरे रेल के पास मिलते हैं, केदार बद्री चले जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे अक्सर जाते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं भी गई थी, वो तुम्हारे मामा जी के घर बाघाचदिन में है ना? हाँ। उस दिन मैंने उनसे पूछा तुम्हारे पिताजी भी तो फ्रीडम फाइटर थे, क्या फिर तुम्हारे संसार में इतना अभाव क्यों? क्या तुम्हारे पिताजी कुछ भी छोड़कर नहीं गए, ऐसे बुआ जी के कंधों पर बैठे? क्या बोली बड़ी भाभी? वो भी क्या कम सयानी है? कहा अधीर सरकार को कभी गिरफ्तार किया ही नहीं और उसके पिताजी ने 5 साल तक गिरफ्तारी टालते रहे। उनका कहना था हर एक फ्रीडम फाइटर का पहला कर्तव्य यह है कि वो गिरफ्तारी से बचे। हर कोई अगर जेल के अंदर चले जाए तो देश का काम कौन करेगा? हम सुनो, बातें सुनती रहो, नीति कथा सुनती जाओ। मजबी बम्मा, रिंकी के इन बातों को हंसकर उड़ाना ठीक नहीं। मैं अधीर सरकार को जानता था, उनके प्रति मेरे मन में दुर्बलता थी और आज भी है। मैं तो आज भी कहता हूं कि
वो एक सही माने में इंसान थे। उन्होंने सरकारी पेंशन न मांगी थी, न उन्हें मिली। बड़ी अभावपूर्ण जिंदगी थी। ज्यादा उम्र में शादी की थी, रिम्की को छोड़कर मरे थे। पत्नी उनसे पहले ही गुजर गई थी। रिम्की का पालन पोषण उसकी बुआ ने किया था। पिताजी ये सब बातें अब छोड़िए। बड़े भैया नर्सिंग होम से बड़ी भाभी को लेकर यही आ रहे हैं, उसका क्या होगा? पहले जिंदा तो वापस आए, फिर यह सब सोचेंगे। मैं वीरू से बात करूंगा, तुम चिंता मत करना। मैंने लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम की एक बहुत ही बढ़िया किताब पढ़ी थी, बहुत ही बढ़िया। अमेरिकन जीआईओ के साथ एक लड़की की लड़ाई, दानंग एयरबेस। मैं वियतनाम की बात कर रहा हूँ। तो वियतनाम की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। भाभी के अलावा और किससे ये सब बात करूं? तुम्हें आने में इतनी देर हुई? काफी देर से आया हूं। वो नीचे ऑफिस में बैठ के हिसाब देख रहा था। ये लोग तुम्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं ना? हाँ, कब? कुछ एक आध टेस्ट इनका बाकी रह गया है, शायद शनिवार को। दैट्स फाइन। ओहो, पर मैं तो शुक्रवार को पटना टूर पे निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप बैठिए। मछली दीदी, अल्लाह मछली दीदी, आ गई महारानी। और तुम चल दिए? आज शनिवार है, लाने के लिए और कोई दिन नहीं मिला इन लोगों को। मैं कहती हूँ अब भी कुछ करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। खेल तो अभी शुरू हुआ, देखो अब कौन किसकी बात सुनता है। ओ मामा, क्या हुआ? ताई जी ये दरवाजा खोल दो ना माँ। हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना। होमवर्क कंप्लीट करो, नहीं तो इतना सारा कंप्लेन लिख भेजेगी आंटी तुम्हारे स्कूल से। जाओ। ताई जी ये दरवाजा खोल दो ना माँ। ताई जी के लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ पे, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। दो ना माँ। पहले पढ़ ली बेटी। अपने कमरे में चले गए। वासु कहाँ है? वो तो टूर पे गए हैं, पटना। बड़े भैया लेकर आए हैं। पिताजी आप कुछ नहीं कहेंगे? देखो, अशांति मत बढ़ाओ। कल रात भर नींद नहीं आई है। पिताजी, माँ, बाबू, बबलू, उनकी बहुएं, सुक्ति, इन सबको दोष देकर फायदा क्या है? समाज के असूलों और तहजीब की बंदिशों में जकड़े हैं सब। तुम उनके जैसे नहीं हो ना? तुम्हें ऐसा लगता है? फिर तुमने करोड़ों से नाम मान कैसे लिया? तो तुम भी सीक्रेट से चाहती हो। कब तक वो चुपचाप कहते रहे? देखो, मैं सीक्रेट से नहीं चाहता हूं, और फिर इस बात की चर्चा भी नहीं चाहता हूं। और जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर दिल छोटा करने से फायदा भी क्या है? स्कूल में मधुपर्णा दी को खबर करनी होगी। छुट्टी की पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। नाम मत लेना तुम उनका। ये सब कुछ का जिम्मेदार वही है। अगर वो तुम्हें कुछ पहले छोड़ देती तो, और फिर देखना, स्कूल जाकर सबसे पहले इस बात की चर्चा वही करेंगी। मधुपर्णा भी गॉसिप नहीं करती। हाँ, वो खुद चंपाहाटी में रहती हैं, शायद खुद को बचाने के लिए इस बात की चर्चा न करें। और सुनो, अब वो आशा की तुम छुट्टी कर दो। हाँ, इधर की बात उधर करने में, चुगली करने में माहिर है। अचानक काम वाली को छुड़ा दूंगे
फिर काम कैसे चलेगा? हम लोग बाहर भी तो जाना है ना। हाँ, ये भी तो ठीक है। ऊपर से नियोगी नहीं लौटने तक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। साली की शादी में गया हुआ है। सोचता हूं ऑफिस जाकर तोड़ा में काम ले लेते हैं। मेरा काम का काम भी हो जाएगा, तुम्हारा चेंज भी हो जाएगा। आखिरकार डॉक्टर ने तो बाहर जाने के लिए कहा है। यही करते हैं। ये बड़ा सुंदर सर्किट हाउस है वहां पर। अगर खाली हो तो उसे बुक कर लेते हैं। कुछ दिन आराम से बिताएंगे। यही करते हैं हम। नहा धोकर ऑफिस चलते हैं। ताई जी। अरे अंजलि, आओ बेटा, आओ। ताई जी, क्लासरूम में टमाटर का पास बना दोगी? टमाटर का पास? हाँ, क्यों नहीं? माँ तुम्हारे पास बना माँ की बात माननी चाहिए बेटी। माता टमाटर का बस बना ही नहीं सकती। क्या हुआ है अंजलि, अंजलि, होमवर्क छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपना ड्राइंग बुक उठाओ। चलो चलो, इसीलिए माँ पढ़ती है तुम्हें। चलो, सेवा को मारना नहीं। तुम अपना दरवाजा बंद तो रख सकती हो। चलो चलो मेरे साथ, रखो इसे। आओ। मुझे ठीक ही पता था कि अंजलि बड़े भैया के फ्लैट में गई होगी। अगले हफ्ते अंजलि की छुट्टियां हो रही है। कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती? कहना क्या चाहते हो? बड़ी दीदी के डर से अपना घर छोड़कर चली जाओ? तुम लोगों की दौड़ देख ली है मैंने। अरे टुबलू सिर्फ फड़फड़ा सकता है, काम की बात उससे होती ही नहीं। बासु पर भरोसा किया नहीं जा सकता। अकेली सुप्ती ही चारों तरफ ध्यान रखती है। तुम्हारे बाबा माँ के रहना ना रहना समान है, कोई काम की नहीं हो। अरे तुम बबलू दत्त को नहीं पहचानती। ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर उठ ना सकेगी। सुबह होने दो, फिर देखता हूं। क्या बात है? वाह, ऑफिस चल दिए ना। हम लोगों से पूछे बगैर बड़े भैया भाभी को नर्सिंग होम से ला धमके, और हम ये सब मान ले। क्या तूने सोचकर कभी देखा है कि इसके बाद अंजाम क्या होगा? तू बस फड़फड़ाना ही जानता है। तू कहना क्या चाहता है? तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस मेरे साथ चल। जो कुछ कहना है मैं ही कहूंगा। कल ही मैंने सारी बात का जिक्र डॉक्टर त्रिपाठी से किया था। अच्छे बने रहने का वक्त नहीं है ये। चल चल। लो, आओ अंदर। अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आओ। क्या बात है? पिताजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई? नहीं, हम लोगों को बिना कुछ बताए भाभी को तुम नर्सिंग होम से घर ले आए। ये ठीक नहीं किया। क्या बक रहे हो तुम बड़ी भाभी को यहां नहीं रख सकोगे। भले ही हम सब कुछ ना कहें, मोहल्ले वाले झंझट करेंगे, मोहल्ले से निकल कर ही दम लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? HIV टेस्ट करवाया? व्हाट? HIV टेस्ट, एलिजा टेस्ट कुछ भी नहीं करवाया। और नागतला नर्सिंग होम में ये सब होता ही नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी से मैंने बात की और उन्होंने जो कुछ कहा सुनकर तो मेरे हाथ पांव सूज गए। क्या कहा डॉक्टर त्रिपाठी ने? हर समय ब्लड टेस्ट से बीमारी पकड़ी नहीं जाती। गवर्नमेंट दशा में शरीर में छिपी रहती है। फिर अचानक एक दिन हो तो तुम एड्स की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा अंदाजा ठीक है। Immune deficiency syndrome. आपका दिमाग खराब हो गया क्या? या फिर हम लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं? कहा ना कि हर तरह का ब्लड टेस्ट आपका करवाया गया है।
वो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं अमर थानदार, वो तो उसी डॉक्टर त्रिपाठी के बैचमेट हैं। वैसे आपके देवर अगर इस तरह की मिसलीडिंग बातचीत करते हैं तो एक समस्या जरूर है। समस्या सुलझाने तो आपके पास आई हूँ, बेवक्त आपके घर आकर आपको तंग किया इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आपके घर वालों का मोड ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड, ये सब आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए तो मैंने आपके पति से कहा था कि आप दोनों कुछ दिन कलकत्ते से बाहर घुम आइए। खुले वातावरण में आप स्वस्थ महसूस करेंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं उस घर में टिक पाऊंगी। और आपके पति, वो क्या कहते हैं? वो बहुत इंडिसिसिव है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कोलैबोरेटिव तो नहीं है ना, इतना ही काफी है। असल में जानती हैं, हमारे देश में आज भी औरतों को ही हमेशा दोषी ठहराया जाता है। अरे आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं, औरत हमेशा दोषी और मर्द वो तो बस दूध के धुले हैं, बेदाग निकल जाते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप बातें बहुत सुंदर करती हैं। और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कभी किसी तरह की जरूरत हुई तो चले आइएगा। हाँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अच्छा, नमस्ते। सुना है आपकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है, डॉक्टर आया था। प्रेशर कितना है? 200/100 दोनों ऊपर है। नीचे वाला तो कम से कम 80 के नीचे होना चाहिए। आप भी हर बात में खुद को क्यों लपेट लेते हैं? चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन चुपचाप रहने देती कहाँ है। तेरी माँ हर वक्त काम के पास फुसूर करती रहती है, हर समय झगड़ा बहस। क्या झगड़ा किया है मैंने? क्या खुसुर किया है? तुम तो पूरा सठिया गए हो। जब भी कभी टुबलू के घर टीवी देखने जाती हूँ शुरू हो जाते हैं, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। बस माँ बस, बहुत हो गया। अब आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। वैसे ही मैं अपनी आग में झुलस रहा हूं। मुझे फिर से टूर पर जाना है। बड़ी बहू को कहाँ छोड़कर जाएगा? कहाँ छोड़कर जाऊंगा? मेरा तो सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं है। ऊपर से अगल बगल के फ्लैट होने के नाते और भी परेशानी है। थोड़ा प्रोजेक्ट का काम है, उसे साथ ही लेकर जाऊंगा। वहां सर्किट हाउस बुक करके रखा है, कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ा भागीन है बहुमा, लेकिन आज जो परिस्थिति, उससे सभी डरते हैं। टुल्लू का तो दिमागी गर्म रहता है, बबलू का बात भी उड़ाने वाली नहीं है। कहीं बाहर वो कह रही थी कि आपके ब्लड टेस्ट सारे हो चुके हैं। तुम्हारे भाइयों ने डॉक्टर त्रिपाठी की बात कहकर तुम्हें मिसलीड करनी चाहिए। हाँ, समझा। कर तोड़ा जाने का बंदोबस्त कर चुका। हाँ, कल सुबह सर्किट हाउस भी बुक कर लिया है, और तुम साथ रहोगी, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्कूल का क्या करूं? क्यों? कोई नई बात निकल आई है क्या? हाँ, आज मधुपर्णा भी आई थी। यहाँ? क्यों? मधुदिया पहले भी आई है। मगर अब तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। कर क्या कह रही थी? कह रही थी सविता ने इस्तीफा दे दिया है। मधु जी बहुत परेशान है, बाकी सब बहुत डरे हुए हैं। और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा? कह रही थी ना जाने कैसे मेरी बात यहाँ लीक आउट हो गई है। सोच रही हूँ डॉक्टर से रेजिग्नेशन दे दूं। अच्छा होगा, मैं भी यही चाहता हूं। कल सुबह निकलना है,
तुम जाओ, जाने की तैयारी करो। जाड़े में आइएगा, देखिएगा आपका तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ, जगह बहुत सुंदर है। यहाँ हाट में क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती है भाभी, सारे सब्जियाँ बाहर चली जाती है। हाँ, आजकल पालक बाजार में आने लगा, बैगन भी कभी कभार मिल जाता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर लालू बाबू चौकीदार के हाथों झिलमिल के बाजार से रोहू मछली भिजवाई है। अच्छा, यहाँ तो छोटी मछली ज्यादा मिलती है ना? बहुत ज्यादा नहीं, मछुआरे लोग तालाब पोखर में मछली मारते हैं। भाभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसे मेज पर रख दो। अच्छा। सीता जी भाभी, आज मैं नदी में नहाने जाऊंगी। पानी में उतर सकेगी? आपको मैं इसी घाट पे ले जाऊंगी जहाँ मैं जाती हूँ। ठीक है। फिर से बाहर जा रहे हो? हाँ, जाना पड़ेगा। क्या लिख रही हो? स्कूल के रेजिग्नेशन लेटर का ड्राफ्ट बना रही हूँ। उस दिन मधु के हाथों दे देती तो ठीक रहता, लेकिन बातों बातों में रिक्शा वाले की बात छिड़ गई तो ख्याल ही न रहा। कौन रिक्शा वाला? अरे वही चंपाहाटी में जिसका खून हुआ था। उस बेचारी की बीवी की बहुत हालत खराब है, पागलों जैसी हो गई है बेचारी, भूखों भी मर रही है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कर सकती हूँ?
मैंने 500 रुपये मधु दी के हाथों उसके लिए भेज दिए हैं। तुमने उस रिक्शे वाले की बीवी को पैसे भेजे हैं? बर्बादी का कोई कसर बाकी रहा था जो तुमने ऐसा किया? हाँ? अरे अब तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। लोग 2 और 2 का 4 बना लेंगे। हाँ? वो तुम्हारी मधु दी जितनी भी कोशिश करे, अब रिंकी दत्ता का स्कैंडल कोरोबी सेन छुपा नहीं सकती। लोग मुझे लेकर खींचातानी करेंगे और भी वो तरह तरह के संगठन जबरदस्ती मदद करने वालों की कोई कमी है इस देश में? वो सब खबर ढूंढ के निकालेंगे। और ऊपर से अखबार वाले, क्या तुम समझते हो अखबार वाले घास चढ़ते हैं? एक के बाद क्या? तुम सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुम। हाँ, मेरा बना बनाया संसार को तुमने बिखेर के रख दिया। क्या बिगड़ा था तुम्हारा? वो तुम्हारे प्रिंसिपल या रेक्टर कुछ भी कहते हो, वो किसी स्टाफ से कहा था कि बार बार मैटरनिटी लीव लेने से स्कूल का काम नहीं चलेगा। क्या गलत कहा था उन्होंने? क्या गलत कहा था? इतनी सी बातों पे तुम लोगों ने राय का पहाड़ बना दिया। और तुम, हाउ आर यू कंसर्न्ड बाय दैट? हाउ आर यू कंसर्न्ड? तुम्हारी अपनी जिंदगी में मैटरनिटी लीव लेने की नौबत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये तो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आओ रिम्की, बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो रिम्की, मैं सोच रहा था कि अगर गोद लेते हैं तो नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है। निश्चय कर लिया है? मेरे जैसी लड़कियां इन हालात से गुजरने के बावजूद जब कोठे पर नहीं बैठ सकती, तो उनके लिए कौन सा रास्ता निकलता है यही देखने के लिए मैं वहां गई थी। लेकिन ये सब कुछ तुमने मुझसे नहीं कहा। बताऊंगी, बता दूंगी। बता दोगी? क्या बताओगी? एक छोटा सा महिला संगठन है जो मेरे जैसे लड़कियों को काम देता है। वहां नौकरी भी मिलती है और रहने की जगह भी। लेकिन रिम्की, मैंने कभी तुमसे तो ये नहीं, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं ये जानती हूं तुम कह भी नहीं पाओगे। मगर तुम मन ही मन मेरे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हो। मैं सताई हुई हूं ना, इसलिए तुम्हारे मन में एक डर सा लगा रहता है। एक डर। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ऑफिस के कलीग, तुम्हारे पड़ोसी, इन सब परिचित जगहों से तुम अपना मुंह छुपाए फिर रहे हो। रिम्की, यकीन मानो मैं नहीं, मुझे आज कह लेने दो। तुम्हारे मन में एक रिएक्शन हो रहा है। तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर लोग जान जाए तो तुम कहीं की नहीं रहोगे। मगर क्या ऐसा सोचना गलत है रिम्की? बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना तुम जैसे लोगों के लिए सही है, लेकिन ये उचित नहीं है। आज तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। क्या मैं जानबूझकर रेप हुई थी? क्या कोई भी लड़की ये चाहती है? तो फिर आज मुझे अकेले इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? और जो लोग दोषी हैं, वो समाज में सीना तान कर घूम रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो लोग आज मुझसे नफरत करते हैं, मैं उन लोगों से नफरत करती हूं। तो फिर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। अब
अब मैं इन लोगों से क्या कहूं? तुम्हारे जो जी में आए तुम कह देना। आज तक तुमने बहुत झूठ बोला है, रिम की दत्त को करोगी सिंह बनाया है। तुम्हारी जो जी में आए तुम बोलना। तुम सचमुच घर वापस नहीं जाओगी? मेरा तुमसे सिर्फ एक अनुरोध है। मैंने आत्महत्या की है ये कभी मत कहना, क्योंकि मैं जीऊंगी, जरूर जीऊंगी और अच्छी तरह से जीऊंगी।